Good morning students. Today in our second part of the video of chapter 2 polynomial of class 10 we shall discuss few more things, but before that let us revise what we have discussed in earlier video. हमने इससे पिछले वीडियोस में पॉलिनोमियल को रिवाइज किया था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 9th में पढ़ा है हमने पॉलिनोमियल क्या होते हैं और उनके जीरोस क्या होते हैं ये भी 9th में पढ़ा था। हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था कि सम ऑफ पॉलिनोमियल का जो फार्मूला है वो कैसे फॉर्म हुआ। यहाँ पर एक बार इसको और रिवाइज कर लेते हैं। नाउ इफ वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 एज इन ax² + bx + c। इस पॉलिनोमियल में देखना है कि डिग्री कितनी है, 2 है। क्यों डिग्री 2 है? बिकॉज द हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 2 है। इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट विल हैव 2 zeros only and those zero will be represented by alpha and beta. This shows the sum of zeros. This is sum of zeros, that is alpha plus beta. Alpha and beta are the zeros of the polynomial, quadratic polynomial. A is minus b upon a. Now what we are discussing? We are discussing the relationship of zeros of polynomial and coefficients. In a polynomial, these constant a, b, c are called coefficients of variables. X is variable, x is variable. So here a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the coefficient of, we can say, x raised to power 0. तो ये a b c तीनों क्या कोफिशिएंट है। तो सम ऑफ जीरो यानी रूट्स का सम और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है यहाँ समझ में आता है कि रूट्स जो होंगे या जीरो जो होंगे इस पॉलिनोमियल के वो होंगे -b/a। अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया हो तो उसके रूट्स का सम निकालने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। Alpha into beta is equal to c into a. What is this? This is product of zeros. Product of zeros. ये alpha into beta is c upon a. तो इस तरह से इस फॉर्मूले का उपयोग करना सीखेंगे सवाल में, एक्सरसाइज 2.2 में हम सीखेंगे। Now, if in the case of cubic polynomial, what is cubic polynomial? Cubic means degree should be 3, like this. ax³ + bx² + cx + d. Now in this polynomial the degree of the polynomial is 3 because the highest degree is 3 here. In that case, because it is a cubic polynomial, so it will have 3 zeros. Those zeros will be represented by alpha, beta, and another term is called gamma. All these letters are Greek letters. It is called gamma. ये अब अगर साइंस फिजिक्स में भी कई तरह की गामा रेज पढ़ते हैं वहाँ पर भी आता है अल्फा, बीटा एंड गामा, alpha, beta, gamma. So sum of zero will be alpha plus beta plus gamma, and that will be equal to -b/a. Same जो यहाँ पर था ऐसे alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha। अगर उनको पेयर में लें और उनको फिर उनको मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें तो होता है c/a। alpha beta, beta gamma और gamma alpha is c/a, and product of all three zeros is alpha into beta into gamma, that is -d/a. So this is the formula that can be used in exercise while solving the problem of the exercise. Okay, so this is the question from exercise 2.2, question 1 in part 2nd. We have given a polynomial in form of s. Here s is variable, so ps is equal to 4s² - 4s + 1. This is our polynomial, and what is the question? Question is find the zeros of the polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. There are two things that we have to do. First of all, we have to find the zeros of this polynomial. हमें इसके जीरो निकालने हैं। उसके बाद जो हमने अभी डिस्कस किया कि सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। इट मींस वी हैव टू वेरीफाई दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a and alpha into beta is equal to c/a, since this is a quadratic polynomial. हमें ये वेरीफाई करना है, but before that we have to find alpha and we have to find beta. It means 0. अब ये आपने 9th में सीखा होगा। How do we find the zeros of a polynomial? सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर रिवाइज करेंगे थोड़ा ध्यान रखेंगे तो इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। By factorization we can find its zero. So let's factorize this. 4s² - 4s + 1 can be written as 4s² - 2s - 2s + 1. Now what is this? अगर आप लोग रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे 9th क्लास को तो आप देखेंगे आप क्या करते थे, जो स्क्वायर वाली टर्म है वेरिएबल की
एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 4 और जो कांस्टेंट टर्म है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू सी कर देते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 1। आप क्या करते थे, a इंटू सी करते थे, तो कितना निकला 4। फिर आप b के ऐसे दो पार्ट करते थे जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, जो ac है यानी 4 आए, और ऐड करने पे क्या है, यानी जो b है वो आ जाए। तो हम क्या देखते हैं, 2 और 2, 2 2 जा 4, ये दो ऐसे पार्ट हो गए 4 के जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, AC यानी 4 आ रहा है, और ऐड करने पे क्या आ रहा है, B आ रहा है, 2 + 2 4 और -2 -2 -2। इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज किया। यानी क्या करना है, जो S वाली टर्म है यानी कि बीच वाली टर्म यानी कि जिसमें डिग्री 1 है वेरिएबल की, उस टर्म को हमें स्प्लिट करना है दो टर्म्स में। तो हमने स्प्लिट किया तो ये दो और ये दो मिले। अब नाउ लुक एट दिस, यहाँ पर क्या कॉमन है, 2s इज कॉमन हियर, सो अंदर क्या बचेगा 2s - 1, बिकॉज 2s कॉमन लिया तो 4 2 हो जाएगा और एक s बाहर आ गया तो एक s बचेगा। यहाँ से पूरा 2s बाहर आया तो ये 1 बचेगा। अब यहाँ पर हमको 2s - 1 ही चाहिए और हमारे पास है क्या, -2s + 1, तो क्या कॉमन लेंगे, ऑब्वियसली -1 कॉमन लेंगे, बिकॉज हम जब -1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा और प्लस का बन जाएगा माइनस बन जाएगा। ओके, नाउ दिस इज 2s - 1। अब देखिए इस पूरे में 2s - 1 है, इस पूरे में 2s - 1 है, तो इन दोनों में से 2s - 1 गया बाहर, तो ये बच गया 2s, ये तो बाहर चला गया कॉमन, ये बचा -1। तो ये दो फैक्टर आ गए इसके, जो गिवन पॉलिनोमियल था उसके हमें क्या मिल गए, दो फैक्टर। नाउ टू फाइंड द जीरोस, टू फाइंड द जीरो for any value of s, that is हमें क्या करना है, हमें जीरो निकालना है। if ps is equal to 0, s की किसी, हम जीरो कहाँ से निकलेंगे, यानी s की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। अगर ps 0 हो जाएगा तो ये जीरो हो सकते हैं, so 2s - 1 is equal to 0, 2s - 1 is equal to 0। तो क्या करते हैं, जीरो निकालने के लिए ps को 0 के इक्वल रख देते हैं। जब ps को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस, 2s - 1 into 2s - 1 is equal to 0। एक क्वांटिटी ये है, एक क्वांटिटी ये, दोनों का प्रोडक्ट 0 का होता है। जब उनमें से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो जाए, तो या तो ये 0 या फिर ये 0। जब ये 0 होगा तो s की वैल्यू क्या आएगी, s will be 1/2, और यहाँ से भी सेम ही वैल्यू आएगी, s will be 1/2, बिकॉज -1 हो जाएगा +1 और 2 जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो 1/2। सो हमें दो 0 मिल गए। s = 1/2 के लिए ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 बन जाएगा। अगर आप s = 1/2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। सो दिस इज द जीरो। नाउ वी हैव आवर अल्फा, ये हमारा अल्फा आ गया, ये हमारा बीटा, हमें दोनों 0 मिल गए। एक काम हमने कर दिया, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमने काम कर लिया। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, अभी हमने बोला था, वो है टू वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/2। नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, पहला 0, दैट इज 1/2, बीटा कितना है, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 1। नाउ लुक एट आवर क्वेश्चन, अगर इसको हम कंपेयर करें, अपनी इक्वेशन को कंपेयर करें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो a इज इक्वल टू कितना है, हमारी इक्वेशन क्या है, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, और इक्वेशन में पॉलिनोमियल क्या है, 4s² - 4s + 1। सो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1, बिकॉज जो स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या होता है, a² + bx + c। तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 etc। अब देखिए -b/a कितना होगा, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा -b होगा, के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है, और हमें ये दिखाना है कि -b/a भी 1 होगा। तो माइनस बट इज b -4 है, this minus comes here and b is equal to -4, so -4 upon a, what is a, 4, minus into minus will become plus, so 4/4
क्या मिलेगा 1। तो आ गया ना, माइनस बी अपॉन ए इज 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड वेरीफाइड। ये यहाँ से वेरीफाई हो गया, एक एफिशिएंसी वेरीफाई हो गया। अब दूसरा क्या वेरीफाई करना है हमको अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। व्हाट इज अल्फा 1/2, व्हाट इज बीटा 1/2, अभी निकाला कितना हो जाएगा 1/4। नाउ टू फाइंड सी अपॉन ए अगेन पुट द वैल्यू ऑफ सी एंड ए। व्हाट इज सी हियर, कांस्टेंट टर्म 1, व्हाट इज ए हियर, द कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर दैट इज 4 इज इक्वल टू 1/4। तो क्या मिला, ये मिला अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। तो हमने दोनों के दोनों जो रिलेशन है अभी वेरीफाई कर लिए। सो दैट इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। इफ यू हैव टू find the zeros of polynomial, you will go to math class. In math class you have learned about how to find the zeros of a polynomial by factorizing the polynomial। और आपको इस टाइम क्लास में मैक्सिमम भी क्वाड्रेटिक ही पॉलिनोमियल देखेंगे करने को मिलेंगे। उन सब में एक ही चीज़ होती है कि जो मिडिल टर्म है उसे स्प्लिट करना होता है। मिडिल माने कौन सा टर्म, जिसमें डिग्री 1 है वेरिएबल की, x की या 1 है। बी वाली टर्म जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली में जो bx वाली टर्म होती है वो वाली टर्म को अपने स्प्लिट करना है। और उसका रूल क्या है, a इंटू सी लीजिए। अगर a इंटू सी पॉजिटिव आया है तो b के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर वो ac के बराबर आ जाए, और अगर नेगेटिव आया है तो b के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको इनका डिफरेंस ac के बराबर हो। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और बाकी पार्ट्स को भी कर सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसको और बढ़ा के देखेंगे अभी। इफ वी नो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल देन टू फाइंड द पॉलिनोमियल। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि हम उसको भी देखेंगे, क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं कि हमको किसी पॉलिनोमियल के जीरोस का सम दिया हुआ है। सपोज यू हैव गिवन द सम ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 और 2 एंड प्रोडक्ट इज 3। नाउ टू फाइंड द पॉलिनोमियल। अब आप पॉलिनोमियल कैसे पता करेंगे, पॉलिनोमियल क्या होगा। आपको सम ऑफ जीरोस दिया है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया, आपको पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल से जीरो निकालना, उन जीरो से सम निकालना और निकालना प्रोडक्ट, तो आसान था, आपने देख लिया। लेकिन आपको सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, जीरो अलग अलग नहीं दिएगा आपको दो जीरो अलग अलग भी नहीं दिए हैं, आपको बस उनका सम दे रखा है और उनके दे रखे हैं प्रोडक्ट। तो कैसे निकाल सकते हैं, इसका तरीका देखते हैं एक बार। सपोज हमारा पॉलिनोमियल ये है, तो हम जब क्या करते हैं, आमतौर पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। तो हम जो इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें दो फैक्टर मिलेंगे, x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा, लाइक दिस। और यही से हमारे जीरो निकलते हैं अल्फा और बीटा। हो सकता है कोई कांस्टेंट टर्म k भी आ जाए। कांस्टेंट वो होगा, कई बार हो सकता है कि पूरे उस पॉलिनोमियल में ऐसा कोई नंबर हो जो पहले कॉमन है। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, सपोज 32x स्क्वायर प्लस 18। ओके, सो 48x इस तरह का पॉलिनोमियल। अगर हम इस पूरे में दो कॉमन ले लें, क्या कॉमन लें पूरे में से हम लोग दो, तो बन जाएगा ये 16x स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 24x प्लस 9। अब इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इस तरह की फॉर्म में आएंगे, लेकिन साथ में बाहर से कांस्टेंट भी चलता रहेगा। तो हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट भी आए, k इक्वल टू 1 भी हो सकता है और k इक्वल टू मोर देन 1 भी हो सकता है। k की वैल्यू 1 से लेकर आगे तक कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए हम k को लेकर चलते हैं। ठीक, तो ये इसके रूट निकलेंगे, अल्फा फैक्टर निकलेंगे अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू बीटा इज बीटा एक्स, x इंटू अल्फा इज अल्फा एक्स या एक्स अल्फा प्लस अल्फा। थोड़ा ठीक करें इसको, हम एक्स स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है, x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा। देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इस फॉर्म में लिखा जाता है। व्हाट इज दिस, अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ जीरोस। व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आपको सम ऑफ जीरोस दिए हैं तो आप
यहाँ रख दीजिए उसको, एक्स स्क्वायर लिखिए, फिर सम ऑफ जीरो लिख दीजिए, एक्स रख दीजिए, और कांस्टेंट टर्म में जो दीजिए अल्फा इंटू बीटा जो आपको दिया होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये एक फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के टर्म में। यहाँ पर जो के टर्म है कांस्टेंट है, क्या है के कांस्टेंट, के कांस्टेंट टर्म है। ये हो सकता है हो जाए निकले, हो सकता है ना भी निकले, इट डिपेंड करता है कि हमें सम जीरोस किस तरह से दिए गए। अभी हम इसको आगे क्वेश्चन में समझते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 3 एक पार्ट मैंने दिया हुआ है। उस क्वेश्चन में क्या दिया होता है, हमें सम ऑफ जीरोस दिए होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए होते हैं, हमें पॉलिनोमियल बनाना है। सो इफ सम ऑफ जीरो इज जीरो व्हिच मींस अल्फा प्लस बीटा इज जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज अल्फा इनटू बीटा इज रूट 5। नाउ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो हमारा पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म में, कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, वो होता क्या डिस्कस किया था हमने, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर इनके कितनी वैल्यू, एक्स स्क्वायर व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा हियर दिया हुआ है 0, तो 0 इंटू एक्स व्हाट इज अल्फा बीटा दैट इज रूट 5। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स 0 बन जाएगा। तो इसमें इनिशियल टर्म निकलेगी नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज द हाईएस्ट डिग्री इज 2 हियर एंड देयर आर मोर देन वन टर्म, दैट्स व्हाट्स द पॉलिनोमियल। ये निकला हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये हमारा एक तरीका होगा, इस तरीका और भी आपके बुक में एग्जांपल्स में दिया हुआ है, वो क्या तरीका है उसको समझते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं आप डायरेक्टली, और एक तरीका और है उसको देखते हैं। सपोज क्या हमें दिया सम ऑफ जीरोस, दिस इज अल्टरनेटिव वे, वी हैव गिवन अल्फा प्लस बीटा। नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, होता कि नहीं था, आपने डिस्कस किया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए में कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 0 देखिए क्वेश्चन में दिया 0। So this 0 can be written as 0 plus 1. Minus b upon a is alpha plus beta, we know, and alpha plus beta is sum of zeros, and sum of zeros is given here 0. इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 0 दिया है, तो हम रख देंगे 0 and 0 can be written as 0 plus 1. Again alpha into beta is c upon a, and what is alpha into beta given in question, product of 0 कितना है, रूट 5 can be written as रूट 5 plus 1। अब इन दोनों क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, इनको ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में a है, यहाँ भी a है, इस तरफ डिनोमिनेटर कितना है, 1 है, इधर भी 1 है। तो अगर a इज इक्वल टू 1 जाता है तो फिर b इक्वल टू कितना होगा, तो b के सामने वाले जो वैल्यू वो b इक्वल टू हो जाएगी 0। यहाँ माइनस है तो 0 में प्लस माइनस फर्क पड़ता नहीं, और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 5। आप यहाँ से भी एक से निकाल सकते हैं, क्या करना है, बस कंपेयर कीजिए इनको, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, ध्यान रखिए दोनों जगह a सेम रहना चाहिए। अगर दोनों जगह a सेम आ गया तो जो b की करस्पॉन्डिंग वैल्यू न्यूमरेटर में उसको b मान लेंगे, और जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है c की बना के c ले लेंगे, और ये में abc निकल गया। अब abc निकला तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a माने 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। अंतर किसका आया, अंतर केवल इस k का है, k 1 भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है k, तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। आप दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। बुक में जो एग्जांपल दिए जाता है इसी तरह से दिए हैं हमको। ओके, सो दिस इज देयर आर 2 ways to find the polynomial if you have the sum of zeros and the product of zeros. This is another part of the same question. Here sum of 0 is 1/4 and the product of 0 is -1. Sum of 0 is 1/4 and the product of 0 is -1. So we'll take alternative way. हम कोई सा भी तरीका ले सकते हैं हमारी मर्जी। तो अल्फा प्लस बीटा इज गिवन 1/4. Now what is alpha plus beta is equal to b/a. हमें पता है कि sum of 0 कितना होता है, b upon a होता है। Now alpha into beta is -1. This minus का 1 can be written as -1/1.
-1 को हम -1/1 लिख सकते हैं। तो इट इज इक्वल टू सी अपॉन, बिकॉज ये हमें पता है। अब देखिए ध्यान से, मैंने भी इससे पहले क्या कहा था कि जो a है वो दोनों जगह सेव करना है, अगर नहीं है तो करेंगे। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर a 4 है, यहाँ पर 1 है। अब इस 4 को अगर 1 बनाएंगे तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन जैसा बन जाएगा। ज़्यादा आसान क्या है, इस 1 को 4 बनाना। अगर अब इस 1 को 4 बनाना हो तो क्या करेंगे, इससे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। c अपॉन a इज -1/1 और इट कैन बी रिटन एज -4/4। c अपॉन a इज -4/4। क्या किया हमने, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4 और 4 1 4। अब देखिए इसको और इसको, a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू, इन दोनों फ्रैक्शन में a इज इक्वल टू क्या है, 4 है। तो सीधी बात है, इफ a इज इक्वल टू 4 देन b, तो b कोरस्पोंडिंग वैल्यू क्या है, 1 है। ये माइनस b अपॉन a होता है, तो ये -1 आएगा, बिकॉज -b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -4। c इज इक्वल टू -4। एक a अगर 4 है तो a की कोरस्पोंडिंग c की वैल्यू -4 और b की वैल्यू 1 की जगह -1, क्योंकि माइनस यहाँ आ जाएगा तो बन जाएगा -1। तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -4। इन दो से हमने निकाल दिया। व्हाट इज पावर ऑफ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी, 4x स्क्वायर, b की वैल्यू -1 यानी कि -x और प्लस c -4। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा पॉलिनोमियल। तो दिस इज आवर पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये हम कर सकते हैं। तो दिस इज आवर एक्सरसाइज 2.2। इट इज वेरी इजी टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। Just you have to understand the sum of zeros and the relation between sum of zeros and the coefficients and the product of zeros and the coefficients. So that's all for today. I hope now you will solve the exercise 2.2. In case of any doubt, you can ask us.